देखिए पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पैरेलल प्लेट्स का यूज़ करके कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक स्पेशल कैटेगरी कैपेसिटर है, जैसे कि जनरल कैपेसिटर्स होते हैं स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या फिर पैरेलल प्लेट। इसी तरह पैरेलल प्लेट में वो जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कैपेसिटर का, वो प्योरली हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बेसिस बना के पढ़ा था। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ये बहुत सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसके बारे में पढ़ते हैं। सिमिलर वही जो पढ़ा था हमने, कंसिडर एन आइसोलेटेड प्लेट. If I say plate 1, this one is our plate 1, and I am giving it that amount of charge which makes it saturated, means more charge cannot be given to it. If I am putting another charge, another plate which is earthed, see here this plate is insulated and this plate is earthen, grounded or earthed, whatever you call it. फ़ायदा क्या था, हमने पीछे प्रिंसिपल में पढ़ा था. This will induce some negative charge here and some positive charge here, and this positive charge will go down to this earth, and it will remain only negative charge here. So some positive charge can also be given after this, after putting this second plate, because this second plate reduces the overall potential of this plate, so we can put some more positive charge here also. We can give it some more positive charges just because we have put it here. Alright, so this assembly, and it is, if I say separated by distance d apart, separated by distance, these two plates are separated by distance d apart. Alright, if I am considering this to be a free space, means vacuum is here, ये जो खाली स्थान है यहाँ पे vacuum है. If I am considering the area of both the plates is capital A, area, and I am giving it the total charge capital Q. How much charge I am giving? Capital Q. So equal and opposite charge minus Q is generated here, induced here. Alright, equal and opposite charge वहाँ पे generate होगा. तो हम यहाँ ये कह सकते हैं plate 1 is insulated, plate 2 is earthed. Alright, when plus Q is given to plate 1, minus Q is induced on plate 2 on the nearer side. It is very important, just because farther side it was plus Q, which goes to ground side of plate 2. Alright, so plate 1 has surface charge. You must have to remember all these small quantities, all these physical quantities. What is surface charge density, what is volume charge density. Sigma, if I say it is sigma, it is equals to the total charge upon the total area. But in the second plate also, and plate 2 has having negative charge sign, plate 2 has surface charge density, it is sigma minus Q by A, or I say minus sigma equals to minus Q by A. Alright, so these two are the surface charge densities. But as we have read in our previous chapter,
that when two plates having charge density sigma and sigma, this plate consists electric field sigma upon epsilon naught and this field containing electric field sigma upon epsilon naught, but here no charge is here, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है और यहाँ केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा, लेकिन यहाँ बीच में पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि और यहाँ पे तो कोई चार्ज फील्ड है नहीं, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड होगा, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो कितना होगा, बीच में ही केवल होगा। तो हम लिख सकते हैं इन द रीजन्स ऑन लेफ्ट of plate 1 and right of plate 2, the electric field is 0, क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट काम कर रहे होंगे, ठीक है। in region between the plates के बीच में क्या होगा, आपको याद हो, E is equals to sigma upon epsilon naught। हाउ, अगर आपको याद हो, पॉजिटिव के कारण क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और उसकी फील्ड की डायरेक्शन दाएं लेफ्ट टू राइट होगी, निगेटिव के कारण अगेन लेफ्ट टू राइट होगी, लेकिन सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, ये डायरेक्शन इधर की तरफ है, जो बाहर की तरफ है, ये डायरेक्शन अंदर की तरफ है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड अप होके कितनी हो जाएगी, 2 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीच की होगी, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीच में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, ये आप थोड़ा पिछले चैप्टर से रिवाइज कर लीजिएगा जहाँ पे ये चीज़ पढ़ाई गई थी। सो E is equals to, just because sigma we have calculated Q by A, so Q by epsilon naught A, it is our field between these two plates. Taking this electric field as localized between two plates as uniform, हमने क्या कंसीडर किया है कि ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, यानी हमने एजिंग इफेक्ट, असल में लास्ट में जाके इसको ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमने इस एज इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि हमने यूनिफॉर्म मान लिया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस V is equals to E into D, as you have read, electric field into the distance, or E is equals to V by D. So V is equals to E into D. So this 1 by epsilon naught Q by A multiplied by D. Alright. So this V is this quantity. Now you remember capacity C was Q by V. So you can write Q by, put V here, 1 upon epsilon naught Q by A multiplied by D. So it is QQ epsilon naught A by D. So this C is equals to epsilon naught A by D. It is the capacitance of a parallel plate capacitor. Alright, ये तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अब मान लीजिए ये इस प्लेट के बीच में हम यहाँ पे जो हमने वैक्यूम माना था या फिर फ्री स्पेस माना था, अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा मटेरियल भर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, हैविंग इफ
material placed between plates having dielectric constant K। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K। तो आपको पता है कि इस केस में क्या होने वाला है कि उसका जो एक्चुअल परमिटिविटी था वो एप्सिलॉन नॉट था पहले, अब क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। जहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन A/D। लेकिन एप्सिलॉन किसके बाद बराबर होगा? आपने पढ़ा था पीछे, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन R को ही हमने K से रिप्रेजेंट किया था, तो एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A/D, जहाँ एप्सिलॉन R को K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? अगर मान लीजिए इस बाद वाले जो फिलिंग करने के बाद की क्वांटिटी है उसको मैंने कहा C डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद डाल रहे हैं तो C डाइलेक्ट्रिक कह दिया, C डाइलेक्ट्रिक या फिर CD या फिर C डैश कुछ भी कह दीजिए। तो C डाइलेक्ट्रिक क्या है? ये क्वांटिटी है पहले प्रीवियस वाली, तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट A/D जब हमारा वैक्यूम भरा था, तो यहाँ लिख सकते हैं C या फिर K लिख सकते हैं एप्सिलॉन R की जगह KC। यानी डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद केवल क्या करना पड़ता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर डाइलेक्ट्रिक भर के हमें वैल्यू नापनी हो तो बिना डाइलेक्ट्रिक के जो कैपेसिटेंस है वो वैल्यू लीजिए, उसमें क्या उस पर्टिकुलर क्वांटिटी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू से या फिर एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर K से, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो वैल्यू आ जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ या फिर उस मटेरियल के भरने के बाद का कैपेसिटेंस। ऑलराइट, थैंक यू।